Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Sparsh Garg and I think it is high time that even I, much to my dismay, have to reluctantly talk about China. Why you ask? Because like every other news on the face of the planet at this point, China is also driving the news about cryptocurrency, which of course has a direct and absolute effect on the availability of graphics cards for us gamers. Cryptocurrency and crypto miners in China अपने graphics cards bulk में बेच रहे हैं due to the recent crackdown of mining operations in China by the Communist Party. Which is also why in the past 3 weeks the value of Bitcoin and Ethereum both have gone to rock bottom compared to their recent price highs. Which has led to the phenomenon that gamers all over the world were praying for the most over the last 10 months. A crypto crash. Because of this, gamers are finally able to get their hands on a GPU comparatively easily. I mean, बीच में एक समय तो ऐसा आ गया था कि RX 580 वाले अपने आप को टीपू सुल्तान की पिछड़ी औलाद समझ रहे थे और साले इंडियन सेलर्स भाई कहीं पर इंडियन गेमर्स की मर रही हो और इंडियन सेलर्स आके अपना योगदान ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भैंचोद पुराने GT 710 और 610 जो भी इसी सड़ रहे थे उनके वेयर हाउस में, पता नहीं कहां किसकी गांड में हाथ घुसाड़ा और 10-10 हजार रुपए में बेच रहे थे उनको। और सबसे बड़ी बेइज्जती वाली बात हम लोगों के लिए, गेमर इंडस्ट्री के लिए, यह है कि लोग खरीद रहे थे उन कार्ड्स को एंड देयर वर पीपल हु वर जस्टिफाइंग इट लाइक कि भैया अभी के लिए 710 खरीद लेते हैं सस्ते में, बाद में जीपीयू खरीद लेंगे जब जीपीयू का प्राइस सस्ता हो जाएगा। साले वैसे तो तुम्हारे पास पीसी खरीदने के पैसे नहीं होते, तुम्हारी मम्मी नहीं दिलाती, तुम्हारे को पीसी गेमिंग करने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास गेम्स खरीदने के पैसे नहीं होते। और अब GT 710 जैसे जीपीयू पर जिसकी कीमत 2000 रुपए भी ढंग से नहीं है, उसको खर्च करने के लिए, उस पर खर्च करने के लिए तुम्हारे पास 10,000 रुपए आ गए हैं। सालों कहीं शर्म कर लो, किसी के सगे हो जाओ, 1 मिनट में जैसे समय मिला वैसे तुम टीम बदल लेते हो। गलीज किस्म के लोग हो तुम सबसे ज्यादा। बात सुनिए, अरे फट गई है उसकी, जाने से दीमक है ये जज साहब। But all that has seemingly starting to end और आखिरकार जितने भी GPUs पिछले साल पेपर पे लॉन्च हुए थे वो सभी मार्केट में पहले के मुकाबले काफी आसानी से मिलते दिख रहे हैं। I mean, I have completely lost the count now of the unlimited bullshit AMD and especially Nvidia pulled on our faces this past year. And उससे रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड वीडियोस पहले से ही बना रखी हैं, तो जो कि आई बटन में है, तो प्लीज वो जाके तुम देख सकते हो। मार्केट का ये हाल होगा जब ये ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च हुए थे ना, उसके 15-20 दिनों बाद ही मैंने तुम्हारे को बता दिए थे कि ये होने वाला है, तो आई बटन में वो वीडियो है, प्लीज जाके देखो वो वाली, ठीक है। बट नाउ अकॉर्डिंग टू हांगकांग न्यूज आउटलेट HKEPC हार्डवेयर, internal conversations among cryptocurrency groups and crypto miners groups posted to a popular Taiwanese bulletin. Taiwanese? क्या बोल रहा हूँ मैं? But now, according to a Hong Kong news outlet HKEPC Hardware, internal conversations among crypto mining groups posted to a popular Taiwanese bulletin board shows a large quantity of everything from Nvidia's GeForce RTX 3090 and AMD's RX 6900 XT cards to Nvidia's GTX 1060s and AMD's Radeon 470s posted for sale. But by the way, इस आर्टिकल पर 1068 और 478 लिखा हुआ था, जो कि definitely is a fuck up from Google Translate, so you guys can ignore that. I'm gonna butcher some names now. China's crypto mining crackdown in provinces like Inner Mongolia, Qinghai and Sichuan, as well as the government's more aggressive stance against cryptocurrencies more broadly have helped crash cryptocurrency prices around the world. China accounts for about 65% of the world's cryptocurrency mining hash rate for major cryptocurrencies like Bitcoin and Ether, which is why I said crypto related news and moves are dedicated by China at this point. जो व्यूअर्स ग्लोबल न्यूज़ को फॉलो करते हैं उनको पता है कि चाइना ने रिसेंटली अपने ऑफिशियल स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिप्टो करेंसी, बेसिकली डिजिटल वर्जन ऑफ युआन, लॉन्च किया है, followed by a ban on other cryptocurrencies. Which is why there is no way or motivation now for Chinese miners to mine any other cryptocurrency anymore, because of which the GPUs that they had are being sold in bulk at roughly their MSRP price. Which would mean that most of these cards are being sold at an equal or for a lesser price than the miners paid for them when they bought them. And this is where the reason for me making this video comes in.
द GPUs are starting to come and इसका इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी दिख रहा है. So why shouldn't you go out today and buy yourself a new RTX or Radeon, right? You have been a good boy since the last 10 months. You waited for this day with bated breaths and tears of blood in your eyes. Then why is the title of this video stopping you from buying a GPU right now? अगर सोच रहे हो AMD और Nvidia कौन सा उठा लूं इस सस्ते टाइम में, भूल जाओ, सोचो भी मत, प्लीज अभी के लिए रुक जाओ. रुको जरा, सब्र करो. एट दिस पॉइंट न्यू कार्ड्स के बारे में हमारे को सोचना भी नहीं है 25 जुलाई तक. दिस डेट हैज अ बिग सिग्निफिकेंस, बट टू अंडरस्टैंड इट वॉच द वीडियो टिल द एंड. नाउ अपने पेरेंट्स का या अपना हार्ड अर्न सेविंग्स इन स्कैल्प और माइंड कार्ड्स पर खर्च करने जाओ, इससे पहले एक बात सुनो मेरी. Even if the GPU looks completely brand spanking new on the resale sites like eBay या OLX या फिर in the hands of a seller in Nehru Place, जो कि आपको second hand cards पर एक बहुत ही अच्छी डील दे रहा है with bill and warranty as well. मुझे पता है ये भोसड़ी वाले ऐसा करते हैं इंडियन मार्केट्स में, इसलिए बता रहा हूं. Right now is the absolute worst time to buy it. With the current trend in cryptocurrency prices collapsing from $60,000 highs per Bitcoin to more than 50% drops in value. अभी in the past just a few weeks बहुत सारे इंडस्ट्रियल माइनिंग ऑपरेशंस बंद हुए हैं. ये सब अपने एक्सेस हार्डवेयर एक एक कबाड़ा डंप करेंगे at whatever price they can get off it. क्योंकि जितने में इन्होंने ये GPUs खरीदे थे उस पैसे की भरपाई हो चुकी है बहुत पहले ही. और अब जो जितने भी ये GPUs है ना, इनको ये थोड़ा मोड़ा जितना भी प्रॉफिट है उसमें बेचेंगे फॉर सम बोनस. हाल इतना बुरा है कि मेरा राइटर तन्मय अभी कुछ दिनों पहले मेरे को ये चीज बता रहा था कि जितने भी ये जो USA में जो माइनिंग फार्म्स है ना, वो $9-10 पर किलो, यू हर्ड इट राइट, पर किलो में ये GPUs बेच रहे हैं. और ये GPUs हमारे को बिल्कुल नहीं खरीदने हैं अंडर एनी सर्कमस्टांसेस व्हाटसोएवर, क्योंकि ये कार्ड महीनों से माइनिंग फार्म्स में क्रिप्टो माइनिंग कर रहे थे 24/7 नॉन स्टॉप. ये सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स है गाइस. ये माइनिंग कार्ड्स सब धूल भरे वेयर हाउसेस में भर भर के एट हाई टेम्परेचर्स रन हो रहे थे. Over and above all that, these sons of horse will flood the market with these GPUs, calling them brand new and seal packed. और इंडियन मार्केट में तो ये खासकर होता है क्योंकि भैया बंदर की बात सुनो, जितने भी ये सेलर्स हैं ना नेहरू प्लेस में, जितने भी ये लगे हुए हैं, इनमें जो लोग काम करते हैं, ऑफिशियली सेलर्स नहीं, जो इनके लोग काम करते हैं, उनकी ये पॉकेट मनी है. इनके पास माइनर्स आएंगे जो बोलेंगे कि भैया पीछे से जो होता है हमारे GPUs निकाल दो, इनकी डील पीछे से कर दो और इसमें से थोड़ा सा हिस्सा तुम ले लेना. ये GPUs बिकवाएंगे और इसमें से हिस्सा खाएंगे. और एक बात, इन माइनर्स के पास इतने रिसोर्सेज हैं, इन सेलर्स के साथ इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि ये पुराने कार्ड जो जितने भी सेलर्स होते हैं, हजारों GPUs बिकते हैं यार. ठीक है, उनके डब्बे होते हैं, उनका कुछ होता तो है नहीं. ठीक है, और जो सेलर्स होते हैं वो ऑफिशियली इन डब्बों का ख्याल रखते नहीं है, डब्बों का ख्याल रखते नहीं. ठीक है, तो ये जो वर्कर्स होते हैं ना, ये पीछे से डील कर लेते हैं, माइनर्स को वो डब्बे दे देते हैं, माइनर्स उन डब्बों में उन GPUs को पैक करते हैं और फिर उनको पीछे से निकाल देते हैं. No one, and I repeat, no one in their right mind should want to buy an RTX 3080 that's been running at full speed करीब पूरे साल भर लगातार to mine Bitcoin and Ethereum in the worst possible conditions. अगर एक महीने से भी रन कर रहा था तो भी नहीं खरीदना है भैया. USA और चाइना जैसी जगहों में हॉर्स शिट कंडीशन में ये GPUs रन कर रहे होते थे माइनिंग फार्म्स में, तो इंडिया में तो तुम सोच लो कि क्या ही हाल होता होगा. A good example of, mind you, I am not an engineer, but a good example of this is, and you guys can correct me if I'm wrong, it is okay to buy a used car from a person with low to general use case who uses it for daily commute. It is another to buy a car after it's been used in a demolition derby race every day for months on end, selling with a fresh coat of paint. इन इंडस्ट्रियल क्रिप्टो माइनर्स के पास अंधा पैसा है. मैंने बताया पहले भी, इनके पास इतना अंधा पैसा है टू स्पेंड ऑन क्लीनिंग अप एंड पैकेजिंग यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड्स जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू कार्ड.
तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, नो मैटर व्हाट द पिक्चर ऑन लिस्टिंग looks like or what the person recommending to you has to say. And I'm not gonna take any names, but अगर तुमसे कोई बड़ा जाना माना यूट्यूबर भी आके बोलता है ना कि भाई ये नया कार्ड है, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 2-3 महीने माइनिंग की है, ढंग से उसमें है, मेरी गारंटी पर ले लेना, वगैरह 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 वगैरह, तब भी नहीं लेना है। डॉट, खत्म बात। माइंड यू, मुझे चीजें पता है अंदर की क्या चल रही हैं, यही एग्जैक्टली ये रीजन है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ट्रस्ट मी, इंडियन जीपीयू मार्केट इज कंप्लीटली फक्ड अप राइट नाउ। I would simply never trust a mining card or the person promoting or selling them, and you should not do it as well. Once these cards are sold, trust me, ये आपके हाथ में GPU about to die चिपका के चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे in the thin air, और तुम बस बैठे रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे कि जो होता है ये लोग गए कहां। इधर के ऑफिस। और तुम्हें लग रहा हो कि Amazon सेफ है? ट्रस्ट मी, Amazon पे थर्ड पार्टी सेलर्स भी स्कैमर्स हो सकते हैं। Amazon इज नॉट सेफ, पीरियड। Amazon हाथ खड़ा कर देगा ये बोल के कि थर्ड पार्टी सेलर है। आई वर्क एट Amazon, मुझे पता है। जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं बोलकर तुम्हारे को ओपन बॉक्स में फेक प्रोडक्ट डाल देंगे। और भैया ईबे वाले स्कैमर्स तो बिल्कुल ही अलग उनकी गांड में मस्ती है भैया, वो फेक बिल्स तक चिपका देंगे तुम्हारे को और तुम चेक नहीं कर पाओगे, और जो होता है क्या बोलते हैं, सर्विस सेंटर के चक्कर लगाते रह जाओगे, जिस समय तुम्हारे को पता लगेगा कि इसमें प्रॉब्लम है। एक बात ध्यान से सुन लो कि इन प्रोडक्ट्स पर जो माइनिंग में यूज होते हैं इनके ऊपर कोई वारंटी नहीं होती है शुरुआत से ही। इनफैक्ट सब मैन्युफैक्चरर्स इनकी वारंटी को रिड्यूस करके बेचते हैं अगर वो माइनर को बेच रहे हैं तो। और मैन्युफैक्चरर्स को इतना क्लियरली पता है कि कौन से सीरियल नंबर्स वाले कार्ड्स बल्क में उन्होंने माइनर्स को बेचे हैं और माइनिंग फर्म्स को बेचे हैं, तो ये आपको डेफिनेटली लूटेंगे। मैं ये डेफिनेटली समझ सकता हूं कि आप व्यूअर्स और गेमर्स जल्द से जल्द इन कार्ड्स को अपने हाथ में चाहते हो, इन कार्ड्स को खरीदना चाहते हो। आई रियली डू। अगर तुम पिछले साल से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें भी पता है कि मैं खुद एक जीपीयू के लिए मार्केट में हूं। मेरा भी GTX 1080 फुक गया था आफ्टर सो मैनी ईयर्स, सो आई एम इन द सेम बोट एज यू गाइज। And I don't care how smart you are at spotting a bad card, you are taking a much bigger risk if you buy them. And I would advise you to not do that and not inspire others to take the risk as well. Especially मैं ये सारे के सारे, अगर कोई, मुझे पता है तुम यूट्यूबर्स मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तुम लोगों को इतनी सी भी शर्म नहीं है क्या? यू वर दी पीपल जो कि इन लोगों को, इस पीसी गेमिंग कम्युनिटी को गाइड करने वाले थे, एंड यू वर द पीपल हु वर इंटरेस्टेड इन दिस कम्युनिटी। यू वर द पीपल हु स्टार्टेड दिस चैनल बिकॉज यू वर इन लव विद दिस हार्डवेयर, एंड अब तुम उसी कम्युनिटी का चूतिया काट रहे हो। तुमसे बड़ा दीमक मैंने आज तक नहीं देखा है, और मेरे को पता है इस चीज पर डिसलाइक आएंगे। आई डोंट फकिंग केयर गाइस, इट is a complete and utter waste of money to buy a mining card or a scalping card as well. Let these fuckers, especially scalpers, get a taste of their own medicine and lose money. That is the only way. Now's the time to control yourself. Start serving these MC scalpers and greedy OEMs like MSI, Zotac, Gigabyte, Asus, वगैरह वगैरह online for their demand. They need to justify buying up all the legit cards stock with bots, paying ungodly amount of money for our cards. इन OEMs को, इन Nvidia जैसी को ungodly amount इन स्कैल्पर्स ने दिया है ताकि वो दोबारा से बेच सके, और इसका खामियाजा अगले साल हमारे को भुगतना पड़ेगा, अगली जनरेशन में। मैं लिखकर बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊंगा। AMD एंड Nvidia ऐसी की तैसी मारने वाले हैं जस्ट बिकॉज इन स्कैल्पर्स ने अनगॉडली प्राइस पहले दिए, फिर हमने इन स्कैल्पर्स को अनगॉडली प्राइसेस दिए। जिन लोगों ने दिए, इन लोगों की वजह से बुरा हाल होने वाला है अगले साल ग्राफिक कार्ड मार्केट का। दे आर अबाउट to compete, ये जो scalpers हैं, they are about to have to compete with a massive surge of cheaper cards which is going to force them to lower their prices that they are charging. अगर, and this is what we have to aim for, अगर no one buys these cards at even these lower prices, they'll end up losing money on them, which is going to make them so mad, and I'm gonna enjoy it so much
they will get PTSD and never dream of buying up any more cards from legit retailers. इनको सबक सिखाना इसी जनरेशन में बहुत ज़रूरी है, and that is the only way to save the future of GPUs. वरना अगली जनरेशन में फिर से स्कैल्पर्स आएंगे और फिर से हमसे पहले GPUs लेकर जाएंगे बॉट्स की मदद से और हमें वही GPUs 2 गुना रेट्स में बेचेंगे. We have to do it this time only to send a message that scalping a GPU will cost you more than what you had thought you will make in the start. मुझे पता है you've all been waiting so long to get your hands on one of these cards और मुझे पता है and I cannot promise you that every one of you who wants one is going to be able to buy one because of other issues like semiconductor shortage, substrate shortage. Samsung plant in Texas suffered power cuts and was forced to shut down. Water shortages in Taiwan, etc., etc. The pandemic is affecting everyone. Shipping issues all around the world. But luckily, it's likely to get much more easier than it was before to buy a new graphics card due to LHR cards being made. LHR cards यानी mining specific cards. तो माइनर अपने रास्ते से हट चुके हैं. I don't like paying more for a card with nerfed features just like you all. Nevertheless, we saw this trend in the previous tech news from German tech site. ये ट्रेंड चल रहा है, वो वाली वीडियो आई बटन में है, जाकर देख लो. हम सब रुके हैं इतने दिनों से, कुछ और दिनों की बात है, सिर्फ कुछ और दिनों की बात है. We will see even more competition in the space और कुछ महीने में तो. With the Intel DG leaks I reported already, इस जनरेशन में जिन लोगों ने भर के स्कैल्पर्स को GPU के 3 गुना प्राइस दिए हैं ना, इनकी वजह से अगले साल क्या हाल होने वाला है मैं बता नहीं सकता. बट कंपटीशन होगा, ठीक है. सो प्लीज अभी के लिए प्लीज डू नॉट स्पिल फ्यूल इनटू द फायर. Think about what's gonna happen in the next generation because of the steps that you will take today. बस थोड़े दिनों की बात है गाइस, सब्र कर जाओ. आई प्रॉमिस 25 जुलाई के बाद तुम्हें जितना स्टॉक मिलेगा ना, तुम हैरान हो जाओगे. तब खुद ऑफलाइन जाना, सेलर्स के सामने बैठना, डब्बा खुलवाना, अच्छा सीरियल नंबर जो होता है अपना मैच वगैरह करना, GPU लेना और वो भी MSRP पर, ठीक है, और अपना PC बनवाना. 25 जुलाई तक रुक जाओ. It is a humble request to all of you to share this video as much as possible to everyone you know who is even remotely into PC building or wants to get into it so that they can be made aware of about the bullshit that is going on in the PC market as well. That's all everyone. I hope the PC Master Race will take the most sensible decision. Make sure you like, comment and share this video with your PC enthusiast friends, like everyone who wants to make a PC or who wants to get into it. Please ये 3 चीज़ें ज़रूर करके जाना. That helps the video and the channel a lot. And if you are addicted to tech news like everyone else here, then join the therapy, bro. Hit the subscribe button and press the notification bell to not miss out on your medication. Join my Discord server if you have any problems related to your next PC build and follow me on other social media for memes and other tech news जिनके बारे में मैं शायद वीडियो ना बनाऊं, especially Twitter. Memes जानने तो इंस्टा पे जाओ. I am listening to you guys on Twitter, so please follow me there. I'll see you next time with another great video on this channel. This is Parshak signing off. Bye bye, tata, see you and peace. हर एक चीज़ के लिंक तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे.